النار اللهم أرنا الحق حقا فاتبعه وأرنا الباطل باطلا فاجتنابه. پیچھے یعنی چیزوں کی حقیقت ہم نے یعنی موجودہ اشیاء موجود ہے یا نہیں. اچھا پیچھے ہم نے ایک درس پڑھا تھا یہ کہ اشیاء جو ہے وہ موجود ہے یا یہ ویسے تخیلات ہے جیسے لیپ ٹاپ موبائل کتاب وغیرہ. یہ ہمیں کچھ جو نظر آ رہا ہے یہ ہم تخیلات ہے یا صرف یہ واقعی جو ہے خارج میں یعنی دنیا میں موجود ہے. تو اس پر کافی ڈسکشن ہوا تھا. اس میں جو ہے سفسطائیہ کی جو ہے وہ 3 فرقے تھے. عنادیہ عندیہ اور اس طرح لا ادریہ کی 3 فرقے ہم نے پڑھا تھا. یہاں سے جو ہے وہ اسباب العلم وهو صفت يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به أن يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن. یہاں سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ماتن اور شارح دونوں جو ہے یہاں سے جو ہے علم کی تعریفی جو ہے شروع کرتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 2 تعریفیں تو اپنے علم کی 2 تعریفیں کی اور تیسرے ایک اور تعریف جو ہے وہ اشاعرہ کے ہاں علم کی تعریف کیا ہے وہ بھی یہاں پر کی. تو یہاں پر کہتے ہیں سب سے پہلی بات علم کسے کہتے ہیں. علم کہتے ہیں ایک ایسی صفت کو کہ جس کی وجہ سے شے انسان کی ذہن میں ظاہر ہو جاتا ہے اور منکشف ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے منکشف یعنی علم ایک ایسا صفت ہے جس شخص کے ساتھ بھی یہ صفت قائم ہو تو اس شخص کی ذہن میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس شے کی ذکر کرنے سے اس کے آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے ایک ظاہر ہو جاتا ہے ایک منکشفانہ انداز میں ایک صورت آ جاتی تو اس کو کہتے ہیں علم. جیسے میں آپ لوگوں کو کہہ لیتی ہوں گاڑی یعنی بلیک کلر کا گاڑی کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی گاڑی تو آپ لوگوں کے ذہن میں آپ لوگوں کی علم کا صفت جو آپ لوگوں کے ساتھ متصف ہے آپ کی ذہن میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایسا صورت آ جاتی ہے جس میں 4 پہیے ہوتا ہے ایک بریک ہوتا ہے پیچھے بھی سیٹس وغیرہ ہوتے ہیں آگے جو ہے فرنٹ سیٹ اور ساتھ میں ڈرائیور کا سیٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ لوگوں کا کیا ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا ذہن میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک ظاہر آ جاتا ہے ایک منکشفانہ انداز میں ایک صورت آ جاتی ہے گویا کہ آپ یا میں جو ہے میں اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. میں اس کو اپنے جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے لیپ ٹاپ کا نام لے لوں تو آپ کے ذہن میں ایک لیپ ٹاپ کا صورت آ جاتی ہے اور گویا کہ آپ لوگ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیا علم کہتے ہیں. اب جو ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر اچھا اب دیکھو وہ اسباب العلم اور اسباب العلم علم کے اسباب کیا ہے وہ تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن وہ العلم ہوا صفت. یہاں سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ ماتن کا العلم اسباب العلم جو علم ہے اس کی تعریف کرے وہ ہوا صفت. علم ایک صفت یتجلا کہ منکشف ہو جاتے ہیں بہا اس کے ذریعے سے مذکور سے کیا مراد ہے شے مراد ہے. اب مذکور کو کیوں لایا اس کا وجہ بتاتے ہیں پھر بعد میں ایک اعتراض ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو مذکور لایا. لمن قامت ہی ابھی لمن اس شخص کے لیے کیا کہتے ہیں یعنی یہ مذکور شے منکسف ہو جاتی ہے اس علم کی صفت کی وجہ سے لمن اس شخص کے لیے قامت ہی ابھی جس کے ساتھ یہ صفت قائم ہو. ہر انسان کے سامنے جو ہے یہ جس کے علم کا صفت کسی اندر کی موجود نہ ہو تو پھر اس کے سامنے جو ہے کیا ہوتا ہے یہ وہ موجود نہیں ہوتا. جیسے میں کہہ لیتی ہوں عنقا جو ہے ایک پرندہ ہے جو آج کل جو ہے دنیا کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے مفقود ہو چکے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو عنقا پرندے کے بارے میں کہہ لیتی ہوں تو آپ لوگوں کی میں چونکہ یہ علم موجود نہیں ہے یہ علم کا صفت موجود نہیں ہے عنقا کے بارے میں تو اسی وجہ سے جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے عنقا کا کوئی بھی صورت نہیں آتا
कोई भी सूरत नहीं आता, कोई बशा का शक्ल या परिंदे टाइप का जो है चीज नहीं आता। आप लोगों को तो ये भी पता नहीं कि उनका परिंदे भी है या कोई खाने वगैरह की चीजें या पढ़ने की कोई क्या है रिसाला है वगैरह। तो इसी वजह से इसी वजह से कहा लिमन कामत ही भी, जिसके साथ जो है ये सिफत जो है वो कायम यत्तज़िहु व यज़हरु, यानी जाहिर हो जाता है, यत्तज़िहु वाज़िह हो जाता है, और जाहिर जमा यूज करो जो जिक्र हो चुका है, जो यानी जो आपके सामने जो जिक्र हो चुका है वो आपके जहन में जो है ऑटोमेटिकली एक इंकिशाफ हो जाता है, एक जाहिर हो जाता है, गोया कि आप उसको अपने आंखों से देखकर उसको कहते हैं इल्म। युमकिनो से एक इश्काल का जवाब है। इश्काल ये है कि हो बहुत से ऐसी चीजें होती है, मुज़क्कर यहाँ पर जो है ना अलमज़कूर पर इश्काल होता है। अलमज़कूर पर इश्काल होता है कि यानी जो चीज आप बयान कर ले, जिक्र किया जाए, उसका शक्ल सूरत आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जाने को इल्म कहते हैं। तो अब कहते हैं सवाल एतराज ये होता है कि आपने कहा कि जिक्र की जाती है, हालांकि बाज ऐसी चीजें होती है जो कि जुबान से जिक्र नहीं की जाती, सिर्फ सोचने और गौर करने से भी वो चीज आपके जहन में मुनकशिफ हो जाता है, वो चीज आपके जहन में मुनकशिफ हो जाता है। तो आया वो इल्म नहीं कहलाएगा? तो आया वो इल्म नहीं कहलाएगा? यानी बात चीजें ऐसी होती है जो इंसान की जिसका तलफ़ुज़ मुमकिन ना हो, या उसका कोई नाम ना हो, या ऐसे कोई ऐसी चीज मौजूद होना है, यानी मौजूद ही ना हो, आप इसके सामने जो है कोई वो कर ले, तो आपके सामने जो है वो क्या हो जाती है वो चीज आपके सामने आपके जहन में मुनकशिफ हो जाती है। तो आपने मज़कूर का लफ्ज़ क्यों बढ़ाया, मज़कूर का लफ्ज़ क्यों बढ़ाया? तो इससे मालूम होता है जो गैर मौजूदा अशिया है, जो दुनिया में मौजूद ना हो, जिसका नाम ना हो, अगर वो उसका नक्श जो है आपके जहन में आ जाए, आपके जहन में आ जाए, तो आया फिर वो इल्म नहीं कहलाता है। जैसे जन्नत और दोज़ख हो गया, जन्नत और दोज़ख जो है अगर उसका मिसाल दुनिया में मौजूद है, लेकिन चूंकि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो हमने जन्नत और दोज़ख का नाम लेकर या पुलिस सिरात का नाम लेकर या हौज़ कौसर का नाम लेकर हमने हमारे जहन में एक किस्म का शक्ल और सूरत आ जाती है, तो आया उसको हम इल्म नहीं कहेंगे, इल्म नहीं कहेंगे? तो इमाम खुद अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह मुमकिन उससे यह जवाब देता है कि नहीं, यहाँ पर अगर मज़कूर लफ्ज़ मुराद लिया है लेकिन बल्कि जिक्र, लेकिन इससे मुराद वो है कि यानी जिसका ताबीर किया मुमकिन हो, क्या हो, जिसका यानी ऐसे शे का मुनकशिफ होना कि हो जिसका ताबीर करना मुमकिन हो, ख्वा उसका ताल्लुक जिक्र से किया जाए, जुबान के साथ उसका ताल्लुक हो या नहीं हो। यानी हमारा क्या है, हमारा ये मज़कूरा मतलब से ये मुराद नहीं है कि जो चीज मौजूद हो उसका उसका नक्श निगार आपके जहन में आ जाए तो वो आलम है, और जो नहीं मौजूद ना हो दुनिया में तो फिर उसका नक्श निगार आपके सामने, शक्ल सूरत आपके सामने है, तो वो इल्म नहीं है। नहीं, बल्कि मज़कूर से मुराद जिसका ताबीर होना मुमकिन हो, जिसका ताबीर करना मुमकिन हो, जिसका बयान करना मुमकिन हो, ख्वा उसको जिक्र किया जा सकता हो या जिक्र ना किया जा सकता, ख्वा वो दुनिया में मौजूद हो या मौजूद हो नहीं हो। देखो अब वह युमकिन हो और मुमकिन हो, यानी वो चीज ऐसी युमकिन हो, मुमकिन हो अय्युअब्बर अन्हु, कि जिसको ताबीर बना सकते हो, मौजूदन kana और मालूमन, ख्वा वो मौजूद हो या मालूम हो, ख्वा मौजूद हो या मालूम, यानी मौजूद हो और आपको वो, या आप मौजूद तो नहीं है लेकिन आपको मालूम है, जैसे हमें मालूम, हमने देखा नहीं है जन्नत और दोज़ख है लेकिन हमें मालूम तो है। तो इसे फयशमलु इदराकिल हवा, यहाँ से जो है एक और तारीफ करते हैं इल्म की जो है आम तारीफ करते हैं। इल्म का दूसरा तारीफ, इल्म का तारीफ ये करते हैं दूसरा कि हो इल्म वो इल्म जो है ये क्या है यानी वो चीजें जो कि हवास की इदराक या अकल की इदराक से जो है आप उसको मालूम कर सकते हो। हवास आपको मालूम है, हमारे हवास खमसा जो है वो क्या है, 5 है, यानी देखने के जरिए से हम अलवान यानी रंग और शक्ल और सूरत मालूम कर सकते हैं। इस तरह सुनने के साथ हम आवाजों को सुन सकते हैं, इस तरह चखने के साथ नहीं, क्या कहते हैं नाक के साथ हम खुशबू और बदबू को सूंघ सकते हैं। इस तरह जुबान के साथ हम जायकों को चख सकते हैं। इस तरह पकड़ने के साथ, हाथ के साथ हम हरारत और बुरूदात को हम क्या कहते हैं वो कर सकते हैं। यानी मुंह
कान, नाक और इस तरह आंख और इस तरह हाथ से पकड़ना, ये क्या है, ये हवासे खम्सा है। इसको कहते हैं इदराकात एहसास। ये हवासे खम्सा हुआ जिसके जरिए से हम इल्म हासिल करते हैं। दूसरा है अकल। अकल के जरिए से जिस चीज का इदराक कहते हैं उसको ताक़ुल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ताक़ुल कहते हैं। उसके इस्तिलाह में, मंतिक के इस्तिलाह में उसको ताक़ुल कहते हैं। फिर ताक़ुल की दो किस्में हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल, आप गौर से सुन लें। फिर ताक़ुल की जो है यानी जिस चीज का इदराक कर सकते हैं, फिर या तो वो तसव्वुरात में होगा या तस्दीकात में होगा। तसव्वुर कहते हैं या निस्बत ताम खबरिये की इजहान से खाली हो। निस्बत यानी क्या हो, जो इंसान खुद उनका मुशाहिदा इनके साथ ना पड़ा उसको कहते हैं तसव्वुर कहते हैं, और जिसका मुशाहिदा हो उसको कहते हैं तस्दीक। फिर अब ये भी जान लो कि जो चीज आप जिस चीज का इल्म आपने अकल के साथ किया हो, फिर वो तो या तो उसके बारे में आपका दूसरा जानिब जो है वो, यानी आप मिसाल के तौर पर आपने जैद जो है वो क्या है, घर में मौजूद है, जैद घर में मौजूद है। अब इसका ये आपको इस बात का इल्म हुआ कि जैद घर में मौजूद है, लेकिन इसका मुखालिफ जानिब का एहतिमाल भी मौजूद है कि हो सकता है घर में मौजूद ना हो। हो सकता है कि घर में मौजूद ना हो। तो पर जब जानिब मुखालिफ का आपको क्या हो, एहतिमाल हो, तो फिर इसको कहते हैं ज़न, जैसे गुमान यकीन की बात नहीं होती। यानी गुमान है कि ज़ैद मौजूद हो, और गुमान ये हो सकता है कि ना भी हो। यानी जिस चीज का इल्म आप हासिल करते हो उसमें अगर जानिब मुखालिफ का एहतिमाल हो, तो फिर इस इल्म को हम क्या कहते हैं, इस तस्दीक का नाम हम देते हैं ज़न। क्या कहते हैं, ज़न देते हैं। या जैसे जैसे अक्सर मौसमियात वाले कहते हैं कि कल बारिश होगा या परसों बारिश होगी। अब वो ये भी मुमकिन है कि हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन इसका जानिब मुखालिफ भी मौजूद है, एहतिमाल है कि हो सकता है या क्या हो, मुमकिन ना हो। तो इसी वजह से लोग कहते हैं ये मौसम कि मेरे गुमान के मुताबिक कि कल बारिश होगा, कि कल बारिश होगा, लेकिन हो सकता ही ना हो, तो इसको कहते हैं ज़न। तस्दीक की इस पहले किस्म को कहते हैं ज़न। लेकिन अगर तस्दीक में जानिब मुखालिफ का इस्तेमाल ही ना हो, बल्कि आपको यकीन हो कि हाँ जो है घर में ही में मौजूद है, घर में जैद मौजूद है, तो फिर इसको कहते हैं एतकाद यानी पक्की बात को कहा जाता है। फिर जो है एतकाद जो है दो हाल से खाली नहीं होगा। यानी आप किसी चीज के बारे में एतकाद रखे, लेकिन वो नफ्सिल अमर में मौजूद ना हो। आप जो है 100% सबूत के साथ नहीं, आप 100% एतकाद के साथ कह रहे हैं, यकीन के साथ कह रहे हैं कि जैद मौजूद है, लेकिन नफ्सिल अमर में मौजूद हो ना हो, इसको कहते हैं जहल मुरक्कब। जैसे कितने लोग हैं ये गैर मुक़ल्लिद, इसके अलावा जितने भी मुअतज़िला, जितने भी ये बातिल फिरके है ना, काफिर वगैरह, वो अपने गलत अकीदे पर कितना डटे हुए होते हैं, कितना ज्यादा जो है वो 100% उसको अपने अकीदे पर जज्म होता है, लेकिन नफ्स अमर में वो होता नहीं है। जैसे ईसा जो है वो अल्लाह तबारक तआला का बेटा, ईसा जो है अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला का बेटा मानते हैं, वो उसका यकीन है कि जानिब मुखालिफ का तो वो एहतिमाल रखते ही नहीं है, लेकिन नफ्स अमर में वो लोग गलत है, जहल है ना, जहल इसको कहते हैं जहल मुरक्कब। तो बहरहाल जब किसी बात का, किसी इल्म में आपके दिल में जो है जानिब मुखालिफ का एहतिमाल ना हो, तो इसको कहते हैं एतकाद। फिर इस एतकाद और जज़म का दो किस्में हैं, या तो नफ्स अमर वाकई आपका एतकाद जो है नफ्स अमर हकीकत के साथ जो है बिल्कुल मुखालिफ हो, हकीकत में नफ्स अमर में मौजूद ना हो, और आप जो है इतने पक्के 100% के बिना पर आप यकीन रखते हो, तो इसको कहते हैं क्या, जहले मुरक्कब। इसको क्या कहते हैं, जहले मुरक्कब। और जो है क्या हो, किसे, और जो आपके साथ यकीन हो, यानी जो बिल्कुल नफ्सुल अमर और जिस बात का आपको इल्म है, इन दोनों में नफ्सुल अमर में, जैसे हम कहते हैं हमारा दावा ये है कि अल्लाह एक है, और वाकई नफ्सुल अमर में अल्लाह एक है, तो इसको कहते हैं यकीन। क्या कहते हैं, यकीन। तो अब इसको कहते हैं क्या, यकीन। अब यकीन जो है फिर इसकी दो किस्में आती है, यकीन की फिर मजीद इसको एक को हम क्या कहते हैं, तकलीद कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, यकीन का नाम देते हैं। तकलीद का क्या मतलब कि यानी जिस आदमी ने आपको इस बात का इल्म पहुंचा दिया कि अल्लाह एक है,
آپ کو یقینی علم ہے، یقینی علم، اس کے بارے میں حسن ظن کرتے ہو، یا کسی نے بتا دیا آپ کو کہ ہو خون بہنے والا خون یا مردار جو ہے یہ حرام ہے، اور آپ اس کے بارے میں حسن ظن کرتے ہو کہ یہ مجھے کبھی بھی حلال، حرام یا مکروہ یا غلط بات کا حکم نہیں دے گا، یا غلط بات کا حکم نہیں دے گا، تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ ہاں، اگر امکان آئندہ اس کے سامنے اس کے اعتقاد کے علاوہ کوئی دلیل، یعنی کیا کر لیں، اگر اس کا جو ہے وہ کیا یعنی اگر اعتقاد جو ہے نفس الامر کے مطابق ہو، اور پھر جو ہے کیا ہو، یعنی پہلے میں جو ہے تقلید میں جو ہے حسن ظن ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، یہ حسن ظن ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا، کیونکہ تشکیک جو ہے مشکک ہوتا ہے، ہاں کہ ہو سکتا ہے غلط بھی بتایا ہو، جیسے کہ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، یہ خرگوش جو ہے وہ اس کے ہاتھ جو ہے اس کے مذہب میں حلال نہیں ہے، یہ خود، اور وہ کتنے حسن ظن کرتے ہیں اپنے 12 اماموں کے بارے میں کہ اس نے کبھی ہمیں حرام چیز کے بارے میں یا حرام چیز کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی، جس آدمی کا آپ بات بھی مانتے ہو اور وہ نفس الامر میں واقعی آپ کو جو ہے یقین ہو 100% کہ یہ غلط بات نہیں بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو اس سے بہرحال خلاصہ کیا نکلا کہ تصدیق کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ظن جس میں جانب مخالف کا احتمال ہو، دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے کیا ہو، دوسرا جو ہے جہل مرکب ہو کہ جس میں احتمال تو نہ ہو لیکن جو ہے وہ علم جو ہے وہ نفس الامر کے خلاف ہو، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ تیسرا یہ کہ ہاں، اگر آپ جس شخص کی بات مان رہے، جس شخص کے روح سے جو ہے واسطے سے آپ کو علم پہنچ گیا ہے، وہ کیا معلوم ہے، وہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کرے گا، تو اس کو کہتے ہیں تقلید۔ اگرچہ وہ نفس الامر میں احتمال ہو اس کی ٹھیک ہونے کا، حسن ظن کا یا بدزنی کا احتمال ہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ کسی کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ یہ مجھے غلط بات نہیں بتائے گا، اور نفس الامر میں بھی یہی بات ہے کہ وہ آپ کو غلط بات اس نے نہیں بتایا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کیا؟ یقین۔ جیسے شیعہ جو ہے وہ اپنے امام کے بارے میں یہی تقلید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غلط بات نہیں بتائے گا، حالانکہ نفس الامر میں یہ مخالف ہے، کیونکہ ہر گوشت ہے یہ تو حلال جانور ہے، پھر وہ کیوں حرام ہے، کیوں حرام کیا؟ لیکن اس نے اماموں کے حسن ظن کی وجہ سے وہ تقلید کرتے ہیں۔ اب وہ خرگوش جو ہے وہ حلال ہے، ہمارے ائمہ نے تقلید ہم نے کی، ہمارے ائمہ اربعہ کیا کہ خرگوش جو ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ نفس الامر میں بھی حلال ہے، وہاں پر نفس الامر میں حلال تھا، وہاں انہوں نے حرام کیا ہے، ہمارا نفس الامر میں بھی حلال ہے اور ہمیں بتائے بھی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ یہ تو آپ لوگ سمجھ گئے، اب اصلی بات کی طرف آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ کیا یہاں سے جو ہے علم کی تعریف ہو، اب علم کی تعریف جو ہے اس سے معلوم ہو گیا، یعنی علم اس چیز کو کہتے ہیں جو حواس اور عقل دونوں کی ادراک کو، یعنی حواس اور عقل کے ذریعے سے جو چیز ہمارے ذہن میں آ جائے اس کو کہتے ہیں علم۔ تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حواس کے ذریعے سے ہمیں جو چیز معلوم ہوتی ہے تو اس کو بھی علم کے تحت ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں علم ہو گیا۔ اور جو عقل کی جتنی بھی اقسام ہے، ظن ہے، جہل مرکب ہو گیا، تقلید ہو گیا، یقین ہو گیا، اب اس میں جو ہے کیا؟ ظن، جہل مرکب، تقلید، یہ غیر یقینی ہوتی ہے، یہ غیر یقینی تصدیقات ہے نا، یہ غیر یقینی علم ہوتے ہیں، اور یہ یقین جو ہے یہ علم یقین کہلاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ علم میں حواس، اسی طرح ان کے یہ 5 اقسام، اس طرح عقل کی جو 4 اقسام ہے، ظن، جہل مرکب، تقلید، یقین، ان چیزوں کے ذریعے سے جو بھی چیز آپ کو علم حاصل ہے، خواہ کسی کی تقلید کی وجہ سے، خواہ نفس الامر کی وجہ سے، خواہ جانب مخالف موجود ہو یعنی احتمال ہو، یعنی ہر صورت میں جب بھی آپ کو یہ تصور، تصدیق، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ علم حاصل ہوا۔ دیکھو، وما فیشملو، پس یہ علم جو ہے، یہ علم کی تعریف شامل ہوگا ادراک الحواس سے، حواس کی ادراک کو، و ادراک العقل، اور عقل کے ادراک، من التصورات والتصدیقات، تصورات اور تصدیقات۔ میں نے بتا دیا کہ عقل کی پھر 2 قسمیں ہیں، تعقل کی، تصور اور تصدیق، پھر تصدیق کی مزید 4 قسمیں ہیں، ظن،
अक्ल जहल मुरक्कब, और इस तरह तीसरा क्या था तकलीद, चौथा जो है वो यकीन। तो उनमें से यानी व इदराक अल अक्ल मिन तसव्वुरात व तस्दीकात, तो तसव्वुर और तस्दीक में से अक्ल का इदराक करना, अल यकीनियत व गैर अल यकीनियत, यकीनिया में यकीन का आया, गैर अल यकीन में ज़न, जहल मुरक्कब और इस तरह तकलीद जो है ये तीन आया। यानी इस ये जो है आम है, वो पहले पहले तारीफ की बनिस्बत ये जो है दूसरा आम है। यानी हर वो चीज़ जो हवासे खमसे के ज़रिए से हमें मालूम हो जाए, या हर वो चीज़ जो अक़ल की वजह से हमें मालूम हो जाए, ख्वाह इसका मुशाहिदा हमने किया है, ख्वाह हमें दलाइल से मालूम हुआ है, ख्वाह हमने जो है वो क्या कुबरा और सुगरा मंतिक वाला हमने एक दूसरे के जुमले को मिलाया है, हमने नतीजा अखज़ किया, ख्वाह उसका इल्म जो है हमें ज़न के ज़रिए से मालूम हुआ, ख्वाह तक़लीद के ज़रिए से, ख्वाह यकीन के ज़रिए, ख्वाह जहल मुरक्कब के ज़रिए से, जिस तरह भी हमें मालूम है, तो हम कहते हैं इसको इल्म कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? इसको इल्म कहते हैं। बिखिलाफ कौलिहिम सिफतुन तूजिबु तमय्युज़न, यह से जो है अशायरा का क्या थे, बस अशायरा का इल्म, बस अशायरा के नज़दीक इल्म का एक और तारीफ है, वो इंशाअल्लाह लजीज कल पढ़ लेंगे। आज जो है थोड़ा सा वो दूसरा छोटा सा किताब जो है जिसमें 2 सवाल रह गए थे वो पढ़ लेंगे। उसमें ये 25वां सवाल जो है इसका तर्जुमा हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो मैं आप लोगों का, क्योंकि ये मंतिकी जो है सवाल है, इसमें अल्लामा सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है मंतिक को बहुत ज्यादा क्या कर लिया है, मिलाया है। इसी वजह से आप लोगों के लिए इस तर्जुमे का समझना जो है वो क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन मैं आप लोगों को खुलासा समझा देती हूँ। इस सवाल का खुलासा क्या है, इस सवाल में क्या मज़कूर है, वो जो है बता दूंगी, फिर इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मकसूदी चीज जो है वो सवाल का समझना है, जवाब को समझना है। देखो, अस्सवालुल खामिसु वल इशरूना, 25वां सवाल ये था, हल नसिबतुम फी तअलीफिकुम इला बादिल अशाइरतिल क़ौल बिइम्कानिल किज़्ब, क्या तुमने अपनी किसी तसनीफ में अशायरत की तरफ इम्कान किज़ब मंसूब किया है? वअला तक़दीरिहा, और अगर किया वअला तक़दीरिहा बिलफर्ज, अगर किया हो, फमल मुराद बिज़ालिका, तो फिर इससे क्या मुराद है? वहल इंदकुम नस्सुन, क्या तुम्हारे पास कोई नस मौजूद है? अला हाज़ल मज़हबी मिनल मुअतमिदीन बय्यनुल अम्र लना अला वजहिही, अला हाज़ल मज़हब मिनल मुअतमिदीन, क्या आप लोगों के पास मोतबर उलमा का कोई नस मौजूद है या नहीं है? बय्यिनुल अम्रा, बस हमारे लिए इस मामले को वाज़ेह कर, अला वजहिही, वाक़ई अमर के मुताबिक। यहाँ पर जो है मुक़ल्लिदीन गैर मुक़ल्लिदीन हमारे दुश्मनान हज़रा, दुश्मना, देखो ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने जो है असल में हमारे असल मसल क्या था, उन्होंने असल मसले को उलट कर दिया। क्या कर दिया था, उलट कर दिया था। वो किसी तरह हमारा और अशाइरा, मातुरीदिया और अशाइरा, यानी मातुरीदिया अहनाफ और अशाइरा जो है यशात वल मसलक है, हालांकि दोनों को जो है अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। हमारे मसल हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ है वो ये है कि आया उमूम कुदरत बारी ताला, आदम उमूम कुदरत बारी ताला, इसके बारे में हमारा इख्तिलाफ है। उमूम कुदरत बारी ताला, आदम उमूम कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह तबारक ताला की कुदरत का वसी होना, अल्लाह तबारक ताला की कुदरत का वसी ना होना, हमारा इसके दरमियान इख्तिलाफ है। जबकि ये गैर मुकल्लिदीन ने इस मसले को उलट दिया है, क्या इम्कान किज़ब बारी ताला व आदम इम्कान किज़ब बारी ताला, अल्लाह तबारक ताला से झूठ का इम्कान होना मुमकिन है या मुमकिन नहीं है, ये मसला बना है। मसला कुछ और तो उन्वान कुछ और दिया, मसला कुछ और तो उन्वान कुछ और दिया, और ये बता दिया कि हो मातुरीदिया कहते हैं कि इम्कान किस भी बारी ताला मुमकिन है, यानी नऊज़ बिल्लाह अल-इयाद बिल्लाह कि अल्लाह तबारक ताला से झूठ का इम्कान ये मुमकिन है, जबकि अशाइरा कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला से झूठ का इम्कान कहना मुमकिन नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि अशाइरा बल्कि मातुरीदिया कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की कुदरत में उमूम है, क्या है, अल्लाह तबारक ताला की कुदरत में उमूम है, और वो लोग अशाइरा कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक ताला की कुदरत में उमूम नहीं है, वो कहते हैं।
अब मसला क्या है यार, किस तरह उमूम है? हम कहते हैं अशाइरा, अशाइरा नहीं आफा मातुरिदिया कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में इतनी ज्यादा तामीम है, अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में इतना ज्यादा उमूमियत है या इतना ज्यादा आम है या कि एक मोमिन को, हालांकि मोमिन के साथ जो है अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत का वादा किया है, तो अल्लाह तबारक तआला की कुदरत के उमूम की वजह से अल्लाह तबारक तआला मोमिन को जो है जन्नत के बजाय जहन्नम में डाल सकता है, यानी अपने वादे के खिलाफ वर्जी कर सकता है। इसी तरह अगर करेगा नहीं, करेगा नहीं, मैं बताती हूँ फिर दोबारा वहां पर यहाँ पर दो चीजें हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में इतना ज्यादा उमूम है, इतना ज्यादा उमूम है कि यह एक काफिर पर, एक को फिरौन पर, हामान वगैरह वगैरह पर, उस पर जो है ये बात तो अल्लाह तबारक तआला ने वादे बतौर वादा किया है कि उनको जहन्नम में डालेगा, उसको जहन्नम में डालेगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में इतना ज्यादा उमूम है कि जहन्नम की बजाय उसको जन्नत में दाखिल करे, ये कर सकता है। ये क्या कर सकता है? कर सकता है। असल वजह ये है कि एक होते उमूमी कुदरत, एक होते इम्तिनाए सुदूर। इम्तिनाए सुदूर यानी अल्लाह तबारक उमूमी कुदरत का मतलब क्या है कि अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ पर कादिर है, अपने अपने वादे के खिलाफ करने पर कादिर है। उमूमी कुदरत का मतलब ये है। इम्तिनाए सुदूर का मतलब ये है कि अपने वादे के खिलाफ करेगा नहीं। इम्तिनाए सुदूर यानी शरअन और अक़लन अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के मुताबिक के खिलाफ करेगा नहीं। तो हम यही कहते हैं, हमारा और उन अशायरा के इख्तिलाफ हो वो क्या है? एक ही है। कोई भी हम भी कहेगा, हम भी कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला जो है एक काफिर को जहन्नम में डालता है, मोमिन को जन्नत में डालेगा। इस तरह अशायरे भी कहते हैं कि वो एक को क्या करेगा? एक जहन्नम, एक काफिर को जहन्नम में डालेगा और एक मोमिन को जन्नत में डालेगा। लेकिन हम ये भी साथ में कहते हैं, हम दोनों कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला करेगा नहीं, इम्तिनाए सुदूर है, यानी अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ करेगा नहीं, अक़लन भी नहीं करेगा, शरान। अक़लन इसी वजह से कि अल्लाह तबारक तआला जो है वो इंसाफ यानी करता है, और दूसरा शरान ये है कि कुरान में जितनी भी हदीसें आई है, जितनी भी बातें आई है कि वो कहते हैं कि काफिर को जहन्नम में डालेगा और जन्नत। तो इस वजह अक़लन और शरान जो है ये इम्तिनाए सुदूर है। लेकिन हम यहाँ पर इख्तिलाफ आता है, और इख्तिलाफ कहाँ पर आता है? हम कहते हैं उमूमी कुदरत की वजह से इस पर कादिर है। उमूमी कुदरत की वजह से क्या है? इस पर कादिर है, इस पर कादिर है। हम कहते हैं कि उमूमी कुदरत की वजह से ऐसा करता तो नहीं है, लेकिन कादिर है, करेगा तो नहीं। इम्तिनाए सुदूर तो है, करेगा तो नहीं, लेकिन करने पर कादिर है, लेकिन करने पर कादिर है। बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं दूसरा दूसरा वो कहते हैं अशायरा कहते हैं कि नहीं, अल्लाह वो भी कहते हैं अल्लाह तबारक तआला कि जो है वो क्या है करने पर, यानी वो कहते हैं कि उमूम कुदरत ही नहीं है, यानी अल्लाह तबारक तआला ने अपने कुदरत को इतना तंग बनाया है कि वो अल्लाह तबारक तआला की बिल्कुल कुदरत में ये बात लिखी हुई नहीं है कि वो जो है काफिर को जन्नत में भेजेगा, काफिर को जन्नत में भेजेगा। क्या करेगा? वो बने। दूसरा बात, पहली बात ये, दूसरी बात ये है हम कहते हैं हम कहते हैं एक होते हैं वुकू, एक होते हैं वुजूब। एक होते हैं वुकू, एक होते हैं वुजूब। वुकू का मतलब ये है कि वाक़े होना, और वुजूब का मतलब है वाजिब होना। यानी अल्लाह तबारक तआला पर जो है ये बात तो वाजिब नहीं है, अल्लाह तबारक तआला पर ये वाजिब नहीं है कि काफिर को जहन्नम में डालेगा, मोमिन को जन्नत में डालेगा, नहीं, अल्लाह तबारक तआला पर ये वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगरचे वो नहीं होगा, वाकया नहीं होगा। जिस तरह एक जो है वो क्या होता है इनाम देना, मिसाल के तौर पर ये इनामात जितने भी होते हैं, इनामात देना, ये सालाना एग्जाम में जो इनामात दी जाती है तो ये इनामात देना जो है क्या होता है, ये असातिज़ा कराम पर या इंतजामी कमेटी वालों पर वाजिब नहीं होता, लेकिन वकू होता है कि नहीं, हर साल देते हैं कि नहीं देते। तो इसी तरह जो है जन्नत में मोमिन में जन्नत में जाना, इस तरह काफिर को क्या कुफर की वजह से जहन्नम में ले जाना, ये अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं। अगरचे वकू भी, अगरचे वाक़या होगा,
वाकया ये होगा कि जन्नती को जन्नत में भेजेगा, जहन्नमी को जहन्नम में भेजेगा, लेकिन ये दोनों का इन ठिकानों पर भेजना ये अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब नहीं है। तो हम कहते हैं एक होते हैं वुजूब, एक होते हैं वुकू। जरूरी नहीं होता जहाँ वुजूब हो वहां पर वुकू हो, या जहाँ पर वुकू हो वहां पर वाजिब हो, वहां पर वुकू हो। जैसे अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, ये तो वुकू हो गया, लेकिन ये खिलाफ न करना ये अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब नहीं है। लेकिन मुअतजिला कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब है, अल्लाह तबारक तआला पर वाजिब है कि जन्नती को जन्नत में, जहन्नमी को जहन्नम में भेजे। हम कहते हैं एक वुकू होता है, एक वुजूब होता है। वुकू की वजह से जो है वुकू, जहाँ पर वुकू हो वहां पर वुजूब हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर हो जहाँ पर वुकू हो वहां पर जरूरी नहीं है कि वुजूब भी हो, वाजिब हो। हाँ, जहाँ पर हो क्या हो, जहाँ पर वुजूब ना हो वहां पर वुकू भी नहीं होगा, जहाँ पर हो वुजूब ना हो वहां पर वुकू भी वाजिब नहीं होगा। तीसरी बात वो ये लोग जिक्र कर रहे हो, ये कहते हैं कि अच्छा, फिर आप लोगों के मुताबिक तो ये हो गया ना कि अल्लाह तबारक तआला फिर तो जुल्म करेगा कि जब जन्नती जन्नत में जाएगा, जन्नती जहन्नम में भेजे, या क्या अल्लाह तबारक तआला इस पर कादिर हो, जन्नती जहन्नम में भेजे या जहन्नमी जन्नत में भेजे, ये तो फिर अल्लाह तबारक तआला जुल्म करता है। तो फिर अल्लाह तबारक तआला तो अहले जौर में से है ही नहीं, तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में उमूम है, इसी वजह से जो है वो जो चाहे कर सकता है। हम कहते हैं कि जुल्म तब होगा जब अल्लाह तबारक तआला गैर, जुल्म उस वक्त होता है जब किसी और की मिल्कियत में वो करे, तसरुफ करे। अल्लाह तबारक तआला के तो तमाम चीजें, जन्नती जहन्नम काफिर ये तमाम की तमाम अल्लाह तबारक तआला अपनी मिल्कियत में करता है। जैसे मैं अपने लैपटॉप में काम करना शुरू करूं तो आप लोग थोड़ी कहेंगे कि ये बाजी जो है वो जुल्म करते हैं। हाँ, अलबत्ता आप लोगों के लैपटॉप में बगैर आपकी इजाजत में मैं तसरुफ करना शुरू, फिर कहेंगे कि जुल्म करेगा। तो अल्लाह तबारक तआला अपनी मिल्कियत में ये काम कर रहा है, तो इस ये जो है जौर नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक तआला किसी और की मिल्कियत में ये काम करता, तब जो है ये जौर होता, ये जुल्म होता। हाँ, ठीक है, आप लोग नहीं मानते कि ये दलील आप लोगों का गलत है। फिर दूसरी दलील हम पेश करते हैं कि ठीक है, जन्नती को जहन्नम में, जहन्नमी को जन्नत में भेजना, ये आप लोग कहते हैं जुल्म। लेकिन ये जुल्म तब होगा ना जब इम्तिना, जब वो सुदूर पाया जाए, यानी ये जुल्म तब हम कहलाएंगे कि वाकई अल्लाह तबारक तआला जन्नत में जहन्नमी को जन्नत में या जन्नती जहन्नम में भेजे, ये वाकया हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक तआला कादिर तो है, लेकिन वाकया नहीं होगा ऐसा। जन्नत में ऐसा जो है वो क़यामत के दिन नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है जुल्म तब होगा जब अल्लाह तबारक तआला वाकई ऐसा करे, लेकिन करता तो नहीं है ना, तो इसी वजह से जो है ये जुल्म ही नहीं हुआ। ये जुल्म, जैसे इंसान जो है मारने पीटने पर, हर इंसान मारने पीटने पर कादिर होता है, तो फिर हम हर इंसान को जालिम कहेंगे? नहीं ना, बल्कि हम उसको जालिम करें कि जब गैर महल में यूं जो है मारना पीटना शुरू करें, हम कहेंगे कि ये जालिम है। जब एक इंसान के अंदर तो ये सिफत होनी चाहिए ना, इन सिफातों की वजह से इंसान आला से आला तक, एक इंसान जो है वो उसके अंदर गुस्सा हो, गुस्से वाली जो है वो क्या होता है, ये शहवियत जब वो अरूज पर पहुंचे तो उससे गुस्सा बन जाता है। तो इंसान के अंदर जो है शहवत मौजूद है गुस्से वाली, तो अब ये हम नहीं कहेंगे कि ये गुस्से वाला है, ये जालिम है, ये गुस्सा हर वक्त गुस्सा करता है। नहीं, ये तो अच्छी सिफत है, गुस्सा का आना ये अच्छी सिफत है, लेकिन गैर महल में पेश करना ये बुरी सिफत है। हाँ, हर बात बार बच्चों को डांटना वगैरह वगैरह, तो फिर जो है ये गैर महल में पेश करना जो है हालांकि बाज दफा ऐसा होता है कि आप गुस्सा पेश करें किसी अच्छे उसमें, तो फिर ये तो अच्छी सिफत कहलाती है, इसको तो फिर गैरत का नाम हमें दिया जाता है ना, हमारे माशरे उसको गैरत का नाम दिया जाता है। तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि एक तो पहली बात तो ये, तो यहाँ पर इस अकीदे में जो है तीन बातें जो है बयान किया है। पहले तो ये कि हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक, एक होती है उमूम कुदरत, दूसरा होता है इम्तिना सुदूर। हाँ, यानी अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में ये दाखिल है, आम है कि वो जन्नती को जहन्नम, जहन्नमी को जन्नत में भेज दे, लेकिन इम्तिनाई सुदूर की वजह से अल्लाह तबारक तआला ऐसा करेगा नहीं, अपने वादों के खिलाफ जो है ऐसा करेगा, लेकिन कर सकता है। एक बात ये हमने बता दी। दूसरी बात हमने ये बता दी कि एक होते हैं वुकू और दूसरा होता है वजूब। जहाँ पर ये जरूरी नहीं होता जहाँ पर वुकू, यानी जहाँ पर वुकू हो वहां पर यानी जब वुकू होता है तो फिर वजूबी होता है। जरूरी नहीं होता कि जो चीज हो वाकया ना हो, वो नहीं, जो चीज वाकया होता है वो वजूब भी होता है। हर वकू वाली चीज है वाजिब नहीं होता है। जैसे इनाम जो है देना हर साल होता है, लेकिन एक साल ना दे तो कोई वाजिब नहीं होता, आसमान तो नहीं टूटेगा।
तीसरी बात हमने ये जिक्र की कि अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ करना ये जुल्म नहीं कहलाता है, और अल्लाह तबारक तआला की मिल्कियत में तमाम चीजें जो है दुनिया व माफिया व मा अलैहा, ये सब कुछ जो है अल्लाह तबारक तआला की मिल्कियत में दाखिल है। इस वजह से जन्नत और जहन्नम भी, जन्नत और जहन्नम भी, जन्नती जहन्नम में, जहन्नमी जन्नत में भेजे, ये भी जो है अल्लाह तबारक तआला की मिल्कियत में दाखिल है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप लोगों की, आप लोग कहते हैं कि नहीं गैर मलकियत का दखल है, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग ये दलील नहीं मानते तो दूसरी दलील भी हमारे पास मौजूद है। वो ये है कि जुल्म तब कहलागा जब वो अल्लाह तबारक तआला ऐसा वाकई करे, ऐसा वाकई करे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ऐसा करेगा नहीं। कादिर तो है, इसमें तो अल्लाह तबारक तआला की शान में जो है बढ़ोतरी आती है कि अल्लाह तबारक तआला जो है इन तमाम चीजों पर बावजूद कादिर भी है, फिर भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अपने वादे के खिलाफ वो नहीं करता। तो इसी वजह से जो है इस अकीदे में हमने बता दिया कि हमारे अशाइरा, और इसमें सिर्फ ये बात है कि अल्लाह तबारक तआला की कुदरत में उमूम है या नहीं, वो कहते हैं कि नहीं है, हम कहते हैं वुकू है, हम कहते हैं कि हाँ उमूम है, वो हम कहते हैं कि क्या है, उमूम है, वो लोग कहते हैं उमूम नहीं है। बाकी जो है वो क्या होते हैं, इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला झूठ बोल सकता है या झूठ नहीं बोल सकता। हम भी यही करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, और अशाइरा भी यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला की वादे के खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला वादे के खिलाफ करता तो नहीं लेकिन कादिर है। अशाइरा कहते हैं कि कादिर भी नहीं है। बाकी हमारे जो है मंजिल है, क्या अगरचे रास्ते क्या है मुख्तलिफ है, लेकिन मंजिल एक है। वो किस तरह कि जन्नती जन्नत में जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा। हम भी यही कहते हैं, शायर भी है, हम कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, अल्लाह तबारक तआला कर सकता है, अल्लाह तबारक तआला ऐसा करने पर कादिर है, अगर से करता नहीं है। वो भी कहते हैं कि करता नहीं है लेकिन करने पर भी कादिर नहीं है। बाकी जो है कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसके बाद एक और छोटा सा अकीदा है, वो इंशाल्लाह अज़ीज कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम भी पूरा हो गया। वहां पर वो आसान है। वो कदियानियत के मुतालिक है कि आप लोगों ने कही कि हम पर तुहमत बांधते हैं ना कि कदियाना के बारे में आप लोगों ने अच्छा उसकी तारीफी बयान किया या नहीं, तो फिर वो इंशाल्लाह और अजीज। बाकी ये पूरा खुलासा जो है ये काफी तवील जवाब है, इसी वजह से ये तर्जुमा नहीं पढ़ाती क्योंकि आप ये मंतकी जो है वो जवाब है, तो इसी वजह से जितना मैंने वो क्या कर दिया उतनी ही पर इक्तिफा करे इंशाल्लाह अजीज। आपके लोग आलम में कमी नहीं आएगी। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछिए, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं इंशाल्लाह अजीज। फिर एक सवाल रह गया, वो छोटा सा है कदियानियत के मतलब, फिर वो कल पढ़ लेंगे। सवाल है? नहीं है? चलो फिर ठीक है, हमारे इंशाल्लाह अजीज बुध बुध से जो है फिर हिदाया अव्वल भी शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।